Hello friends. Okay. In the arithmetic progression chapter, algebra standard 10, this type of problems, problems like question number 2 from practice set 3.4 are mostly asked, and they are easy to calculate. They are important for the examination point of view. Let us see how to solve this problem. Okay. Now let us read the problem. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1,360 in 12 monthly installments, each installment being less than the preceding one by rupees 40. Find the amount of the first installment and the last installment. So first installment and last installment we have to find. In arithmetic progression, we know that the first term is there, okay, and there is a common difference. There are number of terms. All these things are known to us. So how the arithmetic progression is there in this question, that we first have to find out. Okay. So what is given in the question, that the person has borrows rupees 8,000 rupees. 8,000 rupees उसने borrow किए हैं, and he has to repay with a total interest of 1,360 rupees. So what we can write, how much total amount he has to repay. The amount, total amount to be paid is equal to the amount that he has borrowed, that is 8,000 rupees, and the total interest of 1,360 rupees. The sum of these two, that is 9,360 rupees. This much amount he has to pay. But what this amount is, मतलब है इसका कि हर इंस्टॉलमेंट जितने दिए हैं, इंस्टॉलमेंट्स कितने दिए हमें, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेके तो लास्ट इंस्टॉलमेंट तक जो भी अमाउंट वो भरेगा उसका टोटल अमाउंट कितना आएगा, दैट मीन्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आएगा. ओके, 9,360. सो व्हाट दिस अमाउंट इज इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सो इट इज द सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स. So therefore what we write, it is the sum of all installments. Therefore we write sum of all installments. And how many installments we consider? Suppose n installment. So the value of Sn is given in this question, that is 9360. Also the number of installments are equal to 12. 12 monthly installments are there. So therefore n is equals to 12. So this is second value we obtained. This is the first value we obtained in terms of arithmetic progression. Okay. So arithmetic progression में हम जिन terms को use करते हैं, उन terms की कौन सी values और कौन से terms की values हमें दी है, वो हमें इस word problem से ढूंढना पड़ता है, find out करना पड़ता है. Okay. So now the next is each installment being less than the preceding one. preceding का मतलब है कि पिछले वाली इंस्टॉलमेंट जो भरी होगी, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट भरी, सेकंड इंस्टॉलमेंट भरी. अब जब सेकंड इंस्टॉलमेंट भरने जा रहे हैं तो पिछली इंस्टॉलमेंट जो थी, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी, लेस होगी. कितने रुपए से? इट इज लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय रुपीज 40. सो 40 रुपीज से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कम होगी. इट मीन्स what this 40 is there. So this 40 is the difference in the each installment. हर इंस्टॉलमेंट में 40 रुपीज का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा. पहली इंस्टॉलमेंट जो दी रहेगी उससे 40 रुपीज कम रहेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उससे 40 रुपीज कम रहेंगे. सो इस तरह से जो वैल्यूज है वो क्या होती जाएंगी, इंस्टॉलमेंट्स कम होते जाएंगी. इट मीन्स, और कम होती गई मतलब है कि नेक्स्ट टर्म जो होगी वो छोटी है, फर्स्ट टर्म बड़ी है. तो हम जब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म टू प्रीवियस टर्म, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. अब सेकंड टर्म जो छोटी है उससे अगर फर्स्ट टर्म बड़ी वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन किसका आएगा, राइट. सो हियर व्हाट वी कैन गेट, द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. सो व्हाट्स हियर द कॉमन डिफरेंस, हियर कॉमन डिफरेंस जो हम डी से डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, और जो कम होने वाली वैल्यू है दैट इज रुपीज 40. बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, डोंट फॉरगेट दिस. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये.
यहाँ हमारा हर इंस्टॉलमेंट 40 रुपीज से कम होते जा रहा है, इसका मतलब यहाँ जो डी की वैल्यू है वो 40 की जगह हमें करना पड़ेगा -40, बिकॉज द प्रीसीडिंग इज लेस देन, जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट से क्या होगा, लेस होगा, इसीलिए ये 40 जो है हमें -40 लिखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इट इज। ओके, अगर यहाँ मोर देन होता तो हम यहाँ +40 लिखते हैं। ओके, so -40, so what we got here, so we got this third term there, third value Sn मिली, n मिला, हमें b मिला। What we have to find, we have to find the first installment and the last installment। last installment का मतलब nth installment हमें निकालनी है, first installment मतलब a हमें निकालने हैं। so we have to find what we have to find here, we have to find first installment, that is we denote it by a, first installment a से denote करेंगे, and last installment जो हमें निकालेंगे that is we denote it by t of n। so हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है tn, मतलब n की जगह 12 होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट a निकालनी है, that is t1 also, that t1 also we can call। so we have a formula, which formula we have, अब यहाँ क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ है, एक है tn का और एक है sn का। तो जो इंफॉर्मेशन हमने लिखी है इस पर से पता चलता है कि हमें sn का फॉर्मूला लिखना होगा, क्योंकि sn is given, tn we have to find, a we have to find। so we have a formula that is Sn is equals to, we will write the formula for Sn। क्या होगा Sn का फॉर्मूला? यस, वेरी गुड। Sn is equals to n by 2 in bracket twice a plus n minus 1 into d। Let us revise the term। Sn is the sum of all terms, n is the number of terms, a is the first term, n is the number of terms, and d is the common difference। so therefore putting the values, Sn is 9360, the value of Sn, this Sn is equals to n हमारा 12 है, so 12 by 2, 12 number of installments, in bracket 2 a हमें निकालना है, उसके लिए ऐसे रखते हैं, प्लस 12 हमें पता है -1, n की वैल्यू 12 रखी, और इंटू d, अब d जो है हमारा -40 है, so as it is -1 we write it in the bracket and complete the square bracket। now first of all simplify one by one। so 9360 is equal to 12 by 2, that is 6, 2 6 are 12, in bracket we write it as 2a as it is, plus 12 minus 1, that is 11 into -40। अगर आप जल्दी कर सकते हो तो फास्ट भी कर सकते हैं, साथ साथ में ये 6 को भी इधर ट्रांसफर करते हैं, सो इट विल बी 9360, ये इनटू में मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा अपॉन में, डिनोमिनेटर में 6, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 2a, अब यहाँ माइनस इंटू प्लस, दैट इज -11 into 40, that is 440। okay, so now divided by 6, 6 1 is 6, 3 remains, 6 5 is 30, 6 6 are 36 and 0, 6 1 is 6, कितने बचे, 9 में से 6 है 3 बचे, 3 3, 6 5 are 30 बचे 3, 36, so 6 6 are 36 and 0 as it is, that is equals to twice a -440। साइड को इंटरचेंज कर देते हैं, therefore twice a is equals to twice a -440 is equals to 1560। what we have done, we have interchanged the side। क्यों इंटरचेंज की है, क्योंकि हमें निकालनी है a की वैल्यू और जो हमारे राइट साइड में है, सो राइट साइड को लेफ्ट साइड में ले लिया, लेफ्ट को राइट में ले लिया, सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। okay, so now transfer this -440 on that side, it will be 1560 plus 440, calculating we will get, it is equals to, क्या होगा देखो, 0 plus 0, 6 plus 4 0 1 10, 1 कैरी आ गया, 1 plus 5 6 plus 4 अगेन 0, 1 कैरी आ गया, और ये हो गया 2। ओके, सो इन दोनों की एडिशन होगी 2000, और देयरफॉर a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2000, ये 2 अपॉन में जाएगा, दैट इज अपॉन 2, और यहाँ थोड़ी जगह हमारे पास है, यहाँ लिखते हैं। ओके, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a विल बी
ए विल बी इज इक्वल्स टू 2 से 1000 को डिवाइड किया, सो 1000 रुपीज. So this is the value of A and this is nothing but the first term. And what we have to find out? We have to find out Tn. Now Tn निकालने के लिए हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं. हमारे पास इस Sn का दूसरा फॉर्मूला है, उसको भी यूज कर सकते हैं. Sn is equals to n by 2 T1 plus Tn. अब T1 पता है, n पता है, ये पता है, तो हम वहां निकाल सकते हैं. या तो फिर हमारा Tn का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, Tn is equals to A plus n minus 1 into D, इससे भी हम निकाल सकते हैं. ओके, सो नाउ Tn का मतलब है 12, सो T12 हमें निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू A, है ना. ये जो Tn निकालना है, इट इज नथिंग बट T12, सो दिस इज T12, n की वैल्यू 12 ली हमने. A हमारा कितना 1000 रुपीज प्लस n12 माइनस 1 और इनटू माइनस 40, D की वैल्यू माइनस 40 रख दी, और देयरफॉर T12 इज इक्वल्स टू ये 1000 A की वैल्यू, और यहाँ कैलकुलेशन कर लिया हमने -440 डायरेक्ट लिखा मैंने, क्योंकि इसे कैलकुलेशन में यहाँ किया है. 12 minus 1 is 11 into -40 -440. Subtracting this, we will get T12 is equals to, that is 0, 6, 0, 6 and 5. So 560 is the last term. मतलब 12 इंस्टॉलमेंट्स की शुरुआत करते समय, मतलब 1000 रुपीज से शुरुआत करेंगे. पहला इसमें 1000 रहेगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 40 रुपीज से कम, ऐसे करते करते लास्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगा 560 रहेगा. So lastly we write answer. So we write answer as here, we just like see here how we write the answer. Therefore first installment is equals to rupees, कितना है हमारा आंसर 1000, and last installment is rupees 560. Okay, so any doubt? So very important प्रॉब्लम इट इज, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इजी है. कैलकुलेशंस आपको यहाँ बस ये दो यहाँ की जो स्टेप्स है, यहाँ का कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करना है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिप्रेस, मतलब कम वाली वैल्यू रही तो -40. ये जैसे कि सम वैल्यू इज बोरोड वाला क्वेश्चन है, इसी तरह से इस क्वेश्चन की जगह सेम क्वेश्चन होता है. किसी व्हीकल की वैल्यू, व्हीकल नया परचेस किया है, उसकी इनिशियल कॉस्ट इतनी थी, फिर उसकी कॉस्ट डे बाय डे कम होती गई, और कुछ दिनों के बाद या 12 महीने के बाद कितनी होगी. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो उसमें भी हम इसी तरह का पैटर्न यूज करते हैं. ओके, ट्राई दिस, राइट ऑफ.